So far we have seen that when two objects move in the same direction, the relative speed is nothing but difference of speeds. So if they are moving with say speeds x kilometers per hour and y kilometers per hour, where x is greater than y, then I can say that in the same direction, relative speed would be difference of speeds, which is x minus y. Similarly, if they are moving in opposite directions, then I can say that relative speed is nothing but sum of speeds, that is x plus y kilometers per hour. Now let's look at one special case. Let's observe this man who is rowing the boat in the forward direction. So he is moving with some speed in the forward direction. Observe that the water is still and there is no stream in the water. Now let's look at another case where this man is still rowing forward, but there is a stream of water which is opposing the motion of the boat. So it is moving in the opposite direction. We can see that here the person is facing difficulty and the speed of his rowing the boat has actually decreased. So the speed decreases. Now let's look at another case when the speed has increased. Why is it so? Because now the stream is also in the direction in which the man is moving. So we see that both the man and the stream are moving in the same direction. So even when the person is not rowing, he is moving forward with the speed of the stream only. So his speed has increased. So now let's carefully note these three cases. Let's say that the speed of the boat is x kilometers per hour. That is the speed of this man who is rowing this boat in still water. So speed of the boat in still water is x kilometers per hour. Say that speed of the stream is y kilometers per hour. Now if the person is moving against the stream, so the person is moving in x kilometers per hour in this direction and the speed of the stream is in the opposite direction. So both of them are moving in opposite directions. What has happened? The speed of the man was decreasing. But so far we have seen that when objects move in opposite direction, the relative speed increases. It is the sum of speeds. But in this case, what happens is, when the stream of water is against the direction in which the man is going, or in which the boat is moving, we say that the man is actually moving upstream. That is against the stream, and hence the relative speed decreases. So relative speed in this case is actually difference of speeds. So far in opposite direction it was sum of speeds, but in this case it is difference of speeds, and we call this upstream because he is moving against the stream, so we call it upstream. And speed upstream would be nothing but x minus y. That is the speed of this boat in still water minus the speed of the stream. This is how you get that. Now let us observe the other case, which is the boat is moving in the same direction as the stream. In this case, we actually saw that the person was moving very fast. The speed increased. So far we had seen that when objects move in the same direction, the relative speed decreases. That is, the relative speed is the difference of speeds. But in this special case, when these two are moving in the same direction, that is when the boat and the stream are moving in the same direction, the speed increases. That is, the relative speed in this case is sum of speeds. And since the boat is moving with the stream, we call it downstream. It's moving with the stream, and the speed becomes the sum of speeds, that is the relative speed. So the speed downstream becomes x plus y. That is the speed of this boat in still water plus the speed of the stream. So these two add up. Now let's look at this question. It says that the speed of boat in still water is 8 kilometers per hour and the speed of stream is 2 kilometers per hour.
What I want to find is the time that the boat will take to go 12 kilometers upstream and second 35 kilometers downstream. So the first thing is that we're given the speed in still water, we're given the speed of the stream also, so we can find the speed upstream and downstream. So the speed upstream would be when you're moving against the stream. You're moving against the stream, it would take you more time, that is difference of speeds. So here the speed upstream would be difference of the two, which is 8 minus 2. So the speed upstream is 6 kilometers per hour. Similarly, I can find the speed of the boat downstream also. When you're moving with the stream, you're moving downstream. And when you're moving with the stream, the speed increases. So the speed of the boat downstream would be the sum of the speeds. So speeds here are 8 and 2. Sum of both these speeds would be 8 plus 2 kilometers per hour, which is 10 kilometers per hour. So I know the speed upstream, I know the speed downstream. I want to find the time in which this distance is traveled upstream and the time in which this system is traveled downstream. So let us find the time now. So I want to find the time in which the boat travels 12 kilometers upstream. I've already found that speed upstream is 6 kilometers per hour and I want to find the time for 12 kilometers. So time is nothing but distance by speed. Distance we know is 12 kilometers and speed we know is 6 kilometers per hour. So time taken to go 12 kilometers upstream would be distance by speed, which is nothing but 12 kilometers by 6 kilometers per hour, and this gives me 2 hours. That is, it would take 2 hours to go 12 kilometers upstream. Now let's look at the second case, which is we want to find how much time it will take to go 35 kilometers downstream. We already know that speed downstream is 10 kilometers per hour. That is the sum of both the speeds. So we need to find the time, which is nothing but distance by speed. So time taken to go 35 kilometers downstream would be distance, which is 35 kilometers, divided by speed, which is 10 kilometers per hour. So this gives me 3.5 hours. That is 3.5 hours. So I get 3.5 hours. So it would take 3.5 hours to move 35 kilometers downstream. Now let's see whether you can solve this question. So a man can swim at 6 kilometers per hour in still water. We know his speed in still water. Now he swims 500 meters against a stream in 15 minutes. What will be the speed of the stream? We want to find the speed of the stream. Notice that he swims 500 meters. So the distance that he actually swam is 500 meters. And the time which it took to cover this distance is 15 minutes. But the speed to us is given in kilometers per hour. So we can convert it into kilometers an hour. This would be 500 by 1000 kilometers, which is half a kilometer. And 15 minutes, I want to convert minutes into hours. So again, I can divide this by 60. So this is 1/4 of an hour. So this is what I know, the distance and time. What I'm interested is in finding the speed upstream. Why is it upstream? Since he's going against the stream, he's going upstream against the stream. When you're going against this stream, then the speed decreases. That is difference of speeds.
So we know distance, we know time. This is the distance which he goes in against the stream, that is distance upstream, and time which he takes to cover this distance upstream. So this gives me speed upstream. So I get half kilometers divided by 1/4 hour. This gives me 1/2 times 4 kilometers per hour, which is 2. So I know that speed of that man upstream is 2 kilometers per hour. We know that the speed in still water is 6 kilometers per hour. So speed upstream is 2 kilometers per hour. Speed in still water is 6 kilometers per hour, and we wanted to find the speed of the stream. So we know speed upstream is nothing but difference of the speeds. That is, upstream is difference of speeds. So speed upstream would be speed in still water minus the speed of the stream. So from here you can find the speed of the stream. So speed of the stream would be equal to speed of still water, which is 6 kilometers per hour, minus this comes here, which is speed upstream. Speed upstream is 2 kilometers per hour. So this gives me that speed of the stream is 4 kilometers per hour. So the person swims in the still water at the speed of 6 kilometers per hour. The speed in which he is moving upstream is 2 kilometers per hour, and the speed of the stream is 4 kilometers per hour. So which is this? Which we've just calculated, that speed of stream is 4 kilometers per hour. So remember this special case. In this case, when objects are moving in the opposite direction, that is when the man is moving against the stream or the boat is moving against the stream, what happens is that the relative speed is the difference of speeds. The speed decreases. So when you are moving with the stream, or when you're swimming with the stream, when the boat is moving with the stream, what is happening is that you're moving downstream. So when you move downstream, that is with the stream, the speed increases. That is, the relative speed in that case would be the sum of speeds. So even though they're moving in same direction, the relative speed is the sum of speeds. So remember upstream and downstream. In upstream it is difference of speeds. In downstream it is the sum of speeds. प्रोजेक्टाइल हमने आपको पढ़ा दिया और आशा करता हूं प्रोजेक्टाइल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, प्रोजेक्टाइल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बस प्रोजेक्टाइल में एक लास्ट आपको एक हमें छोटा सा एक और इसमें पॉइंट बताना है, जरा ध्यान से देखिए। अभी आपने दो प्रोजेक्टाइल पढ़े। पहला आपने पढ़ा बेटा केस 1 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। कौन सा पढ़ा बेटा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जिसमें आपने ये टावर से बेटा इस तरह से प्रोजेक्टाइल को ऊपर से आपने फेंक दिया था। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है बेटा। ठीक है, कितनी स्पीड से बेटा? u स्पीड से। और अब जो हम आपको प्रोजेक्टाइल दूसरा हमने पढ़ाया वो था बेटा एंगुलर प्रोजेक्शन। कौन सा था बेटा? एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन में आपने क्या किया था बेटा? यहां से आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर फेंक दिया था। ये था बेटा एंगुलर प्रोजेक्शन, है ना। ये कौन सा प्रोजेक्शन था बेटा? एंगुलर प्रोजेक्शन। लेकिन आप देखिएगा यहां पर जो एंगल था वो हॉरिजॉन्टल से थीटा था। अगर बेटा ये वर्टिकल से थीटा हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता बेटा? वर्टिकल से थीटा हो जाता, तो उसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले आपने यहां रेंज निकाला था, कितना आया था बेटा? याद कीजिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आपने हाइट निकाली थी बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आपने बेटा याद कीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था 2u साइन थीटा बाई जी। और आपने बेटा ट्रेजेक्ट्री निकाली थी y इक्वल्स टू हाफ, है ना, h टेन थीटा माइनस हाफ
जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपने ये 1 2 3 4 रिजल्ट्स निकाले थे बेटा व्हेन प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब अगर बेटा प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल हो जाए, क्या हो जाए बेटा, वर्टिकल हो जाए थीटा एंगल पर वर्टिकल से, है ना। तो अभी जो ये थीटा आपने लिया था, याद कीजिए इस बार वर्टिकल से थीटा एंगल है, यहां से थीटा एंगल है। तो ये जो आप सॉल्व करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर एंगल आपने लिया था थीटा अभी हॉरिजॉन्टल से, वो क्या हो जाएगा बच्चे, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये 90 माइनस थीटा बना रहा है। तो जहां जहां थीटा आया था वहां वहां 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो रेंज हो जाएगी भैया, रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। और आप याद कीजिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि अगर थीटा और 90 माइनस थीटा दो एंगल हैं तो रेंज रिमेन सेम। तो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ही रहेगा। हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हाइट हो जाएगा। और बेटा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई 2u cos थीटा बाई जी। और भैया जी यहाँ पर आप टेन थीटा में टेन 90 माइनस थीटा रख देंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स कॉट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे बेटा ये फॉर्मूले इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है रेंज सेम रहेगी, बाकी सब में जहां जहां थीटा आया था वो 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा। तो बेटा ये प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने आपको क्या पढ़ा दिया बेटा, सबसे पहले हमने आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल के इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आपको बताए जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट था, रेंज था, है ना भाई, मैक्सिमम हाइट था बेटा, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, एजम्पशंस उसमें कौन कौन से एजम्पशंस हम मानते हैं जब प्रोजेक्टाइल हम पढ़ते हैं। फिर प्रोजेक्टाइल की जब हमने सॉल्विंग आपको सिखाई बेटा, तो सॉल्विंग में हमने आपको तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल अभी पढ़ा दिए हैं। पहला ये कौन सा बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। दूसरा ये कौन सा बेटा, एंगुलर प्रोजेक्शन है, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। और ये क्या बेटा, एंगुलर प्रोजेक्शन है, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। और इसमें ऐसे बेटा ये फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे, ठीक। हाँ चलिए, अब बेटा इस टू डायमेंशनल मोशन में, ये जो हमने टू डायमेंशनल मोशन बेटा हमने पढ़ा है, इसमें अब दो छोटी छोटी सी बातें आती हैं, ठीक है। दो छोटी छोटी सी बातें आती हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, है ना। दो छोटी छोटी सी बातें आएंगी, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला आएगा बेटा, पहला आएगा रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। सही है भाई, पहला क्या आएगा बेटा, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, ठीक है, नाव और नदी की प्रॉब्लम, ठीक। ये काफी पूछा जाता है बेटा और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत। तो बड़े ध्यान से सुनिए, आराम से, बिल्कुल शांत मन से सुनिए और आपको ये बिल्कुल एकदम समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ध्यान से देखिए, ठीक। रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमने माना बेटा एक रिवर है, ये रिवर है, ठीक है जी, ये रिवर है। और बेटा रिवर जो है ये फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी है VW। W मतलब बेटा वाटर, तो वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी VW। क्या है बेटा, वेलोसिटी VW है ना। तो अब देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिए आप, इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा एक बोट है जो A पॉइंट से शुरू हुई, ठीक, और बेटा ये सीधे बिल्कुल इसको इस तरीके से सीधे लेकर के चला। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, और इसको मैंने VB बोला। वेलोसिटी ऑफ बोट, इसको क्या बोल दिया बेटा, VB बोल दिया। अब देखिए बेटा पानी फ्लो हो रहा है और ये बोट ऐसे जा रही है, तो आप खुद सोचिए जब पानी फ्लो होगा तो क्या बोट सीधी जा पाएगी, बिल्कुल नहीं जा पाएगी। आप खुद अंदाजा लगाइए,
ये बोट ऐसे गई, पानी ने इसको ऐसे पुश किया, तो बोट के चलने की डायरेक्शन बदलेगी या नहीं बदलेगी? कुछ सोचिए, बताइए आप, क्या चलने की डायरेक्शन बदलेगी बेटा या नहीं बदलेगी? बदलेगी ना, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये डायरेक्शन इस तरीके से चेंज हो गई, यहां पर हम आ गए हैं। मतलब ये बोट जो है जो सीधी जा रही थी, अभी इसके चलने की डायरेक्शन ऐसे हो गई बेटा। और आप पहुंचना तो चाह रहे थे बी पॉइंट पर, और पहुंच कहां गए बेटा? सी पॉइंट पर, ठीक। और कितने एंगल से आपको इसने मोड़ दिया बेटा? थीटा से, ठीक है। आपको इसने कितने एंगल से डेविएट कर दिया बेटा? थीटा एंगल से। अब ये तो बेटा वाटर की वेलोसिटी थी, इट इज कॉल्ड वी डब्ल्यू, ठीक। और ये जो जिस वेलोसिटी से आप चले, आप जरा ध्यान से देखिए, आप ऐसे चल रहे होते तो वाटर की स्पीड होती, आप ऐसे चल रहे होते तो बोट की स्पीड होती, लेकिन अभी वाटर और बोट दोनों की स्पीड आपको यहां पर रिजल्टेंट दे गई। और ये जो स्पीड आपको मिल गई बेटा, ये वाली, इसको हमने बोला रिजल्टेंट स्पीड या रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है बेटा। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है जिससे ये बंदा जो है चल रहा है अभी, क्योंकि बोट और वाटर दोनों की मिला के जो स्पीड बनी, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट स्पीड, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से सोचिएगा, आप दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, क्या ए से सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? अगर इसको नदी पार करनी होती है तो क्या ए से सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता या ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता? तो आंसर वही है सिंपल जो आपने बताया, ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता। तो इसका मतलब ए से सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। अगर ए से सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है तो उसको क्या एडवांटेज हुआ इस पाथ पर चलने का? बेटा देख लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं, क्या एडवांटेज हुआ। पहले आप जरा दिमाग लगाइए और सोचिए कि अगर ये ए सी पाथ पर चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो बेटा अगर आपको पाइथागोरस आती हो तो आप देखिएगा, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेटा परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। तो बेस तो वी बी है, परपेंडिकुलर वी डब्ल्यू है, तो बेटा हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट, इट इज वी बी का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। ये बेटा आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई है, ठीक है भैया। क्या आ गई बेटा? रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई है। और अगर मैं बेटा ये डिस्टेंस भी निकालना चाह रहा हूं, इफ आई वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस AC, ठीक है भाई, तो AC कैसे होगा? अगेन पाइथागोरस से होगा। कैसे निकालेंगे बेटा? AC इक्वल्स टू, देखिएगा कितना हो जाएगा बेटा? AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर। तो भैया AB कितना है बेटा? ध्यान से देखो, AB कितना है? D है, ठीक है। और BC को हम मान लेते हैं x है, ठीक है। तो D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया। तो अभी हम आपसे पूछे कितना टाइम लिया होगा इसने यहां से A से C तक पहुंचने में? तो आप जानते हैं बेटा वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से बेटा टाइम हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये बेटा AC, तो AC का वैल्यू क्या है बच्चे? D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? तो बेटा वेलोसिटी कितना है बेटा? ये रहा VB स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। ये बेटा टाइम है जो इस बंदे को यहां से A से C तक जाने में लगने वाला है। और आप किसी भी रास्ते का टाइम अगर नोट करेंगे, देन दिस विल बी द मिनिमम टाइम, ठीक है। ये जो बंदा है इसको यहां से A से C तक जाने में पानी की सपोर्ट से कम से कम इसको एक टाइम लगा, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा मिनिमम टाइम। क्या बोला बेटा? इसको मिनिमम टाइम बोला, ठीक। अभी इसका डेविएशन हम निकालना चाहें तो मान लीजिए V हमको मालूम नहीं है, हमको VB और VW मालूम है, तो डेविएशन हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एक तो VW अपॉन VB हो जाएगा, ठीक है, और एक बेटा x अपॉन डी भी हो जाएगा, x अपॉन डी। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वाटर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, बोट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लीजिए पानी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड,
और बोट की स्पीड है मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, और डी है जो नदी की चौड़ाई है सपोज 100 मीटर, बोलेगा एक्स बताओ। तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, एक्स आप निकाल सकते हैं, वेरी इजीली यू कैन फाइंड एक्स। ठीक है भाई। और आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, आपसे पूछ सकता है एक्स निकालो और फिर टाइम निकालो। तो देखिए एक्स आने के बाद आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख पाएंगे तो आपको टाइम आ जाएगा। और आपसे पूछेगा व्हाट इज द डेविएशन टेन थीटा बताओ, तो उसमें वैल्यू रख देंगे, यू विल गेट टेन थीटा। इसी तरह के बेटा इसके सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये समझ में आया होगा। ये जो कंडीशन है बेटा, ये कौन सी कंडीशन है, मिनिमम टाइम की कंडीशन है। ठीक है, इसको हम शॉर्टेस्ट टाइम मिनिमम टाइम बोल सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। क्वेश्चन किस टाइप के इस पे आते हैं ये भी आपको इस पे समझ आया होगा। थीटा निकालने को आ सकता है, एक्स निकालने को आ सकता है, डी निकालने को आ सकता है, वी डब्ल्यू निकालने को आ सकता है, वी बी निकालने को आ सकता है, टी निकालने को आ सकता है। तो इस पे जितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं उतने ही क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बन जाते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछिएगा। ठीक, ये बेटा एक केस 1 हो गया जिसमें हमने मिनिमम टाइम हमने लिया था। ठीक, अब देखिए मान लीजिए बेटा अभी केस 2 लेते हैं और ध्यान से समझिएगा। ये बेटा रिवर है, ठीक है बच्चे, रिवर है, ध्यान से देखना बेटा इसको। ये रिवर है, ठीक है, और बेटा ये पानी की स्पीड है VW, वाटर। अभी ये बंदा ए से शुरू हुआ बेटा, ए से, और ये ना बच्चे ये ऐसे जा रहा है तिरछा, यहां जाना चाहता है बी। तो अब खुद सोचिए क्या ये बी जा पाएगा? अभी ये ऐसे जा रहा है तो क्या ये बी पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। ये बिल्कुल सीधा इसको नदी ले जाएगी बेटा ऐसे। कौन से पॉइंट पर पहुंचेगा बेटा? ये सी पॉइंट पर। कितना एंगल बन जाएगा बेटा बीच में? थीटा बन जाएगा। ठीक, और नदी की चौड़ाई वही है जो भी आपने लिया था, क्या था बेटा? डी। और ये भी चौड़ाई वही है एक्स, और बेटा ये स्पीड भी वही है VW, और ये बेटा बोट की स्पीड है और ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये तिरछा फ्लो कर रहा था, इसको पानी ने फोर्स लगाया और सीधा हो गया। तो आप देखिएगा ये शॉर्टेस्ट पाथ पे जा रहा है। ठीक है भाई, ये किस पे जा रहा है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ पे जा रहा है। इससे छोटा पाथ इस बोट के लिए पॉसिबल नहीं है, तो द पर्सन इज मूविंग ऑन शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है बेटा, अब इसको वैसे ही सोल्व करते हैं जैसे बी किया था। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा बेटा? आप देखिएगा इस बार ये हाइपोटेन्यूस नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे होगा बेटा? VB स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। आपको V स्क्वायर चाहिए तो इट इज VB स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर। तो V अंडर रूट हो जाएगा बच्चे VB स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर। ये तो बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब बेटा आपको डिस्टेंस चाहिए, तो आप जानते हो AC है जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है D, इसमें कुछ निकालना ही नहीं है। सही है भाई, तो अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? टाइम निकालना हो तो कैसे होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी है यार? इट इज VB स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी। तो इस पाथ को कवर करने में इतना टाइम लग गया, ये वेलोसिटी हो गई रिजल्टेंट, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। अभी आपसे पूछा जाए थीटा बताइए, तो इस बार आपको क्या मालूम है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा यहाँ पर अप्लाई होगा। और साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा? साइन थीटा वी कैन राइट दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज साइन थीटा। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां से आ जाएगा। आपसे एक्स पूछे तो कैसे करेंगे? तो वही सिंपली टेन थीटा लगा दीजिए। टेन थीटा एक तो हो जाएगा बेटा एक्स बाई डी, और एक हो जाएगा बेटा वेलोसिटी सामने वाली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज v। ये बेटा टेन थीटा हो जाएगा। तो जब आप v निकाल लेंगे तो उससे x भी हम फाइंड कर सकते हैं, हम d भी फाइंड कर सकते हैं, VW भी फाइंड कर सकते हैं। ये बेटा ये कौन सा पोर्शन है? शॉर्टेस्ट, हाँ शॉर्टेस्ट पाथ का है बेटा। और जो इससे पहले हमने कराया था वो क्या था बेटा? मिनिमम टाइम था। तो इसमें भी क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसमें बेटा v आपको v पूछ सकता है, VB पूछ सकता है, VW आपसे है ना वो क्वेश्चन में पूछ सकता है।
वो आपसे थीटा पूछ सकता है बेटा, वो टाइम टी के ऊपर आपको क्वेश्चन दे सकता है। इसमें से कोई भी 3 चीज दे देगा, एक चीज वेरिएबल दे देगा, वो आपसे वहां पर क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको आसान लगा होगा, आसान टॉपिक है, आपको समझ आया होगा। ये बेटा 2 डायमेंशनल मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक था बेटा वो प्रोजेक्टाइल था, और ये जो सेकंड टॉपिक है ये हमने अभी पढ़ा बेटा, ये है 2 डायमेंशनल मोशन में शॉर्टेस्ट पाथ एंड मिनिमम टाइम, रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिएगा बेटा, इसमें जो सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग जो प्रॉब्लम है बेटा वो है अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम है बेटा? अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक, अब ये अम्ब्रेला प्रॉब्लम कहां से आई, है ना? दैट इज अ, हाँ ये बड़ा अमेजिंग सा वर्ड लग रहा है, अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए कैसे होगा। देखिए बेटा, मान लीजिए, सपोज कीजिए बेटा, एक रेन है एंड रेन इज फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, रेन इज फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स होती है, तो इसलिए मैंने नीचे एरो बनाया, तो रेन इज फॉलिंग 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अभी यहां पर हम डायरेक्शन बना लेते हैं बेटा, ईस्ट, इट इज वेस्ट, इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, ये डायरेक्शन। ठीक है जी, अब रेन इज फॉलिंग 12 मीटर पर सेकेंड डाउन। अब एक वुमेन है बेटा, एक वुमेन है एंड वुमेन इज राइडिंग ऑन अ बाइसिकल। वुमेन जो है बेटा वो बाइसिकल पर है और वो 35 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में जा रही है। ठीक है भाई, 35 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, सही है। आपसे पूछ रहा है कि कितने एंगल पर, वर्टिकल से किस एंगल पर इस औरत को छाता पकड़ना है कि उसको बारिश ना लगे। ठीक, ध्यान से समझना, वर्टिकल से कितने एंगल पर इस लेडी को छाता होल्ड करना है कि इसको बारिश ना लगे। तो आप कैसे निकालेंगे, सोचिए सोचिए। देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा समझ में आएगा। जब हम स्टैंडिंग खड़े होते हैं बेटा और बारिश गिर रही होती है, तो जब हम छाता बिल्कुल स्ट्रेट हम इसको होल्ड करें तो ये बारिश ना रुक गई बेटा। अभी क्या हुआ, हम बाइक से, स्कूटर से या गाड़ी से हम जा रहे हैं, तो कभी आपने नोटिस किया होगा, देखिए ये हमारा बाइक या स्कूटर की स्पीड है, ये बेटा ये रेन फॉल हुआ, तो अभी ये बेटा ये इस तरह से आगे भी जा रहा है और ये ऐसे फॉल हो रहा है, तो ये जो बारिश की जो वेलोसिटी है बेटा वो टिल्ट हो जाती है, यानी बारिश जो पड़ेगी ना वो टिल्ट पड़ेगी बेटा। इनके रिजल्टेंट से आपको फील होगी। और आपने देखा भी होगा, हम खड़े हैं तो बारिश हमको धीरे लग रही है, लेकिन जब हम चलना शुरू कर देते हैं तो बारिश तेज हो जाती है, तेज फील होती है। वो क्यों होता है बेटा? वो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से फील होता है। कौन सी वेलोसिटी है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी, वही आपको सिखा रहे हैं। तो जब औरत बेटा जो ये वुमेन है वो 35 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रही होगी और बारिश नीचे गिर रही होगी, तो उसको ना बेटा जितनी बारिश की स्पीड है उससे बारिश फील नहीं होगी, इसका और इसका रिजल्टेंट मिलेगा उससे फील हो रही होगी। और बिल्कुल वर्टिकल बारिश नहीं लगेगी, क्योंकि ये चल रही है तो उसको किसी एंगल पर बारिश फील हो रही होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे वो हम आपको अभी सिखा रहे हैं। देखिए, अब आप जरा अंदाजा लगाइएगा कौन तेज चल रहा होगा, है ना? हु इज मूविंग फास्ट, वुमेन और रेन। अब देखो दोनों की स्पीड जो है, इसका है बेटा, इसका हॉरिजॉन्टल है और इसका वर्टिकल है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बारिश तो लगनी है इसको, ठीक है, वुमेन को बारिश तो लगनी है। तो बारिश कब लगेगी? जब हम रिलेटिव वेलोसिटी रेन की निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसका बेटा? रेन का। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? वुमेन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो आप देखिए, आपको हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया था, तो हमने आपको एक ही चीज बताई थी, जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो जिसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो रेन का विद रिस्पेक्ट टू वुमेन है, तो रेन माइनस वुमेन हमने कर दिया। ये आपको समझ आया होगा। ठीक, अब हमने क्या किया बेटा? देखिए, रेन के साथ अभी प्लस साइन है, तो रेन तो जैसे बना था एज इट इज बनेगा, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन आप देखिए वुमेन के साथ माइनस साइन आया, तो वुमेन के साथ माइनस आया तो जो वुमेन की अभी जो बेटा आपने डायरेक्शन दे रखी है ना उसके अपोजिट आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोग बना रहे हैं। वी आर ड्राइंग दिस डायग्राम फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है भैया, तो ये VW हो गया, कितना स्पीड हो गया बेटा 35 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए वर्टिकल से एंगल पूछा है तो इनका रिजल्टेंट बीच में होगा, और ये रिजल्टेंट जो है ये वर्टिकल से जितना एंगल बनाएगा उसी एंगल पर वुमेन को छाता पकड़ना होगा। ठीक है भाई, जितने एंगल से ये रिजल्टेंट आपका जो टिल्ट होगा उतने ही एंगल पर वुमेन को छाता पकड़ना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप V बोलिएगा, V कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको ये पैरेललोग्राम जैसा फील हो रहा होगा, दिस इज पैरेललोग्राम। इसका ये वाला साइड इतने होगा, ये 35 है तो इट विल बी 35 मतलब VW। तो आपको ये V कैसे मिलेगा, हाउ कैन वी फाइंड दिस V। तो V इज गिवन बाय हाइपोटेन्यूज है तो इट इज गिवन बाय VR स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। इतनी वेलोसिटी से उसको बारिश लगने वाली है। देखिए अभी हमने आपको बताया जब हम चलते हैं तो बारिश तेज लगती है। देखिए रेन की स्पीड तो थी ही, अभी जो वुमेन की स्पीड है देखिए दोनों का रिजल्टेंट मिल रहा है उसको, तो ये ज्यादा स्पीड हो गई है ना भाई, तो बारिश उसको तेज फील हुई। एक बात, दूसरी बात बेटा tan थीटा डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग अम्ब्रेला, तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर 35 एंड व्हाट इज बेस दैट इज 12 आंसर। ठीक है, दैट इज अवर आंसर। ठीक, ये आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट टेक अ क्वेश्चन। अभी इसने बोला बेटा वुमेन ट्रेवलिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, रेन फॉलिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, है ना भाई 20 मीटर पर सेकेंड डाउन। ठीक, अब बेटा इसमें कंफ्यूजन क्या हुआ, देखिए इसमें डायग्राम बनाने में कंफ्यूजन है। देखिए वुमेन जा रही है नॉर्थ में तो बच्चा ऐसे डायग्राम बनाएगा। देखिए ये वुमेन का डायग्राम है नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ उसको मालूम है ऊपर है। अब देखिए रेन नीचे आ रही है तो रेन का डायग्राम ऐसे बनाएगा। बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है साहब, ये क्या है भाई अर्थ है। अब जरा एक्सेस को सामने देखिए, ये ईस्ट है, इट इज ईस्ट, है ना भाई, इट इज वेस्ट, है ना, सॉरी ईस्ट वेस्ट, ठीक है भाई। और ये क्या होगा बेटा नॉर्थ, और ये क्या होगा बेटा साउथ। समझ में आपको, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो देखिए सब इसी प्लेन में है और रेन इज फॉलिंग लाइक दिस। तो बेटा ये जो नॉर्थ है वो ये वाला नॉर्थ है ना भाई, और रेन ऐसे डल रही है तो अब भी 90 का एंगल है। अभी अगर डायग्राम आप ऐसा बनाते हैं तो उसका मतलब ये आप समझ ही नहीं पाए, 3D फिगर है, ठीक है, तो हम इसको ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये वुमेन है साहब, कितना स्पीड है बेटा 10, कहां जा रही है बच्चे नॉर्थ में। ये रेन है, कितना स्पीड है बच्चे 20 मीटर पर सेकेंड डाउन। आप जानते ही हो आगे क्या करना है, रिलेटिव स्पीड निकालनी। किसका बेटा रेन विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा वुमेन। कैसे निकलती है बच्चे, VR तो सेम रहता है क्योंकि उसके साथ पॉजिटिव साइन है, W बदल जाता है जी। कितना हो गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, पहले नॉर्थ था तो क्या हो गया भाई साउथ, ठीक है। और ये वर्टिकल से एंगल बना भाई थीटा, ये रिजल्टेंट वैसे ही निकलेगा V इक्वल्स टू अंडर रूट VW स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, सिंपल। और tan थीटा इक्वल्स टू अगेन वही होगा भाई, क्या होगा बेटा 10/20 आंसर। ये आपका आंसर आया, मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। तो बेटा ये 2 डायमेंशनल मोशन के 3 स्पेशल टॉपिक हमने आपको पढ़ाए। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद ये तीनों टॉपिक बहुत ही रिक्वायर्ड हैं, कंपलसरी हैं, है ना। क्या क्या टॉपिक थे बेटा ये, पहले हमने आपको पढ़ाया रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में हमने आपको क्या बताया बेटा, हमने रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में बताया कि सबसे पहले रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ हमको कैसे निकालना है, और उस पर किस टाइप के कितने टाइप के क्वेश्चन उस पर डेवलप किए जा सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा हमने आपको कराया बेटा अम्ब्रेला प्रॉब्लम। अम्ब्रेला प्रॉब्लम में हमने आपको क्या बताया, वर्टिकल से कितने एंगल पर अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा।
एक क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान से बताइएगा। सोचिए जब बारिश हो रही है, ठीक है साहब, जब बारिश हो रही है, पहले तो आप ये देखिएगा जो आपका गाड़ी का जो विंड स्क्रीन है, गाड़ी का जो फ्रंट वाला शीशा है, वो बेटा तिरछा क्यों लगा होता है, वो बिल्कुल सीधा क्यों नहीं होता। सोचिए गाड़ी का जो फ्रंट वाला जो आपका स्क्रीन है और जो बैक वाला जो स्क्रीन है वो बेटा तिरछे क्यों होते हैं, वो सीधे क्यों नहीं होते। सोचिए, हमने भी आपको 2 मिनट पहले पढ़ाया। सोचिए, हाँ बिल्कुल ठीक दिमाग में आया आपके। वर्टिकल में जब बारिश होती है बेटा, और जब बारिश हो रही है बच्चे, तो एक तो बारिश का पानी वहां से आसानी से फ्लो कर जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, जब वर्टिकल में जब बेटा बारिश होती है और आपकी जो गाड़ी है वो सीधी चल रही है, तो जो पानी जो डलेगा वो ना वो स्क्रीन पर इस तरीके से डलता है, इस एंगल पर डलता है कि वो आराम से वहां से फ्लो कर जाता है और आपको बहुत ज्यादा विजन में प्रॉब्लम नहीं होती है ना भाई। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात आप मुझे बताइएगा, जब गाड़ी हमारी चल रही होती है बारिश में, तो जो फ्रंट शीशा है वो तो आपका आसानी से वेट हो जाता है, लेकिन जो बैक वाला शीशा है वो क्यों नहीं भीगता। सोचिएगा। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, इसका एंगल ऐसे है और इसका एंगल ऐसे है, ठीक है भाई। तो यहां से जो बारिश आ रही है सामने, ठीक है, वो किसी दूसरे एंगल पर आ रही होगी, और जो बैक में जो बारिश आ रही है वो डिफरेंट एंगल पे आ रही होगी। तो जो फ्रंट वाला है उस पर तो डायरेक्ट रेनफॉल हो रहा है, ठीक है भाई, और जो बैक वाला जो मिरर है उस पर बेटा डायरेक्ट रेनफॉल नहीं हो रहा है ना, टिल्ट होने की वजह से, और बारिश भी एक एंगल से आ रही है, तो उस पर डायरेक्ट रेनफॉल नहीं हो रहा है, इसलिए वो भीगता नहीं है, उसको देर लगती है भीगने में, ठीक है बेटा। तो ये सब इस एंगुलर मोशन, इस एंगल की वजह से ही होता है जो हमने अभी किया, और ये रिजल्टेंट स्पीड की वजह से ये सारे फिनोमेना हमको ऑब्जर्व होते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी तो व्हाट्सएप कीजिए, नंबर वही है 9410036555। कल हमको वेक्टर स्टार्ट करना है, ठीक है भाई, कल हमको वेक्टर स्टार्ट करना है। इसको आप ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो बिना हेजिटेशन के हमसे आप कभी भी किसी भी समय व्हाट्सएप कीजिए और प्रॉब्लम पूछिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है बेटा, ध्यान लगा के पढ़ें। थैंक यू।